In today's class, what we are going to do is we are going to explain. I'm going to explain you about the time complexity and the kind of stuff, which is a very important topic for all the DSA persons who are like, if you are working on DSA skills or a kind of stuff. So time complexity matters on every answer. For example, in yesterday's class or a kind of stuff, we have if you were there. So give me a second. Yeah, give me a second. I guess my screen is visible. Oh, yeah. I guess my DSA time complexity wala screen is visible to everyone. Thumbs up or thumbs down, please. Yeah, sure. So, I would be requesting everyone to make the session थोड़ा सा interactive. Yeah. While I will be asking answers and a kind of stuff. No need to get the thing like कि मेरे को नहीं आता या कुछ भी है. We are going to try here. ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता तो we are going to explain you everything in this classes. So till then, what we have done, we have completed all the kind of stuff. For example, normal Python classes and the if I'm going to share you. Yeah, we have completed what are the list, what is variable, what are tuple and what are the arrays. And I guess सभी को ये चीज आ गई होगी. If you are not getting a thing, so you can also ask doubts. And the most important topics we have discussed are list, tuple and dictionaries के बीच में जितने differences थे and these. Conditional statements, loops, input variable, data types, keywords, operations, and ये थी. Now moving with the advanced classes. Advanced Python में what we have done, we have completed the oops के concept जो कि हमने apply नहीं करे, but we have apply तो we are doing in our daily life, but we have apply तो we are doing in our daily life, but we are going to solve the things. Fine. I guess my audio and videos are both clear to everyone. A thumbs up from everyone, please. Also, if you are new, so I would be requesting everyone. So, if you are facing any doubts in any structure, so you can ask. And in no worries, Guru Datta. So you can also watch YouTube recordings for that. Sure. So we have covered all the basic concepts and kind of stuffs. So moving with the homework question, there was two homework question which I'm going to explain you, and I will also check. I will also show you what's the time complexity, how to measure it, and kind of stuffs. Yeah, I would be requesting to the coordinators Ashwini to share the links and kind, please. Yeah, there was a question if you are from tomorrow class, like it's a easy questions and it's a easy question and we have to convert Roman to integers. What are Roman numbers? Roman numerals. क्या कोई explain कर सकता है? What are Roman numerals or the numbers? You can also type in the thing or plus you can open your mics. So I guess nobody is comfortable in opening mic. Roman numerals are the ancient, or we can say the letter-based numeric system. For example, I, V, X, L, C, D, M. These kinds of stuffs are called Roman numerals. It's also you can see it here. Okay, Roman numerals are represented by six different symbols: I, V, X, L, C, D, M. Fine. So the symbol has the values. For example, in this question, this question, the symbol has given I. The value is 1.
V has 5, X has 10, and these kind of stuff, the process is going to be repeated. I guess it's यहाँ तक सभी को clear है कि Roman numbers are the symbols which we use in there are like 7 different types of symbols जो कि हम लोग use करते हैं. Fine. So the symbols have their own values जो कि assigned है by the system. I की 1, V has 5, X has 10. Also, the last question from everyone, like, are you all comfortable in Hindi? Please tell. Or you are comfortable in Hindi or both? We are Both. comfortable in both. Yeah, sure. Thanks a lot. Hmm. Thanks a lot. So they have defined as the symbol and they have also defined as the values. As for example, if we are going into the example says, for example, 2 is written as II in Roman numerals, just two ones added together. ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं है. अगर हमें दो टू को रिप्रेजेंट करना है किसी भी जगह पे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट आई. ठीक है, अगर हमें 5 को करना होता है तो वी बेसिकली राइट्स वी. 1 2 3 4 कट हो जाता है, फिर 5 आता है. ठीक है, तो ऐसे ही करके व्हाट वी हैव टू डू, एंड 12 इज रिटन एज एक्स आई आई, विच इज सिंप्लीफाइड एज एक्स को हम 10 बोलते हैं, प्लस 2 कर दिया, 2 वंस को जोड़ा तो वो 12 बन गया. ये सभी को आता है. एंड 27 भी इसने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया. इज दैट फाइन? If you are working side by side, also I'm sharing, I would be requesting you guys, these classes are only for the practice and kind of stuffs and the things. ठीक है, आप लाइव प्रैक्टिस करो. आई एम शेयरिंग द लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन. Give me a second. Yeah, I have shared in comment box. I have shared the link. So make sure करो कि आप लोग सभी एक साथ ही काम कर रहे हैं. ठीक है. Now इतना हमें पता चल गया कि रोमन नंबर्स एंड काइंड ऑफ स्टफ्स प्रोसेस क्या है. नाउ मूविंग विद द एग्जांपल. एग्जांपल सेज इनपुट. इनपुट है और एक लिस्ट है, लिस्ट कह सकते हो, या फिर एक वेरिएबल है जो कि डिफाइंड है x इज इक्वल टू आई आई आई, एंड उसको आइडेंटिफाई करना है. आउटपुट इज 3. y3 आपको ये चीज समझ में आई होगी. फाइन. y3 क्योंकि आई 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 1 प्लस 1 प्लस 1 3. मूविंग विद द सेकेंड आउटपुट lx ट्रिपल आई. L का मतलब होता है 50, V का मतलब होता है 5 एंड 3 का मतलब होता है आई आई आई, एज पर द डायरेक्शन जो कि इन लोगों ने हमको डायरेक्शन दी है. Is that fine for everyone? Now, if we are moving with the output wala part, how to write the question, how to write the things in your lead code prompt or a kind of stuff. तो इतना चीज आपका डिफॉल्ट होगा. फाइन. आई एम एक्सप्लेनिंग इन ए इजी वे. किसी को कहीं पर को भी डाउट आता है तो दे कैन इजीली आस्क. श्योर. तो इफ यू आर आस्किंग 6 लाइन तक इनका एक सिंटेक्स होता है जो कि लीड कोड फॉलो करता है, या फिर किसी भी प्रॉम्प्ट या कंपाइलर में जाएंगे तो दे यूजुअली फॉलो दिस. अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा तो देयर इज ए आस्क लीड करके भी है, बट वी हैव टू डू. ये हमको सब चीज बताएगा कि भाई हमें ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ इसने जो हमें नेक्स्ट स्टेप बताया, मॉडिफाई योर सेल्स, और उसको हमें शॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन रिप्लेस ईटीसी ईटीसी ईटीसी. ठीक है, जो भी काम करना है वो हम करेंगे. तो पहले हमने रोमन नंबर्स को डिफाइन करा. रोमन नंबर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट आई वी एक्स एल सी डी एम. ठीक है, इतना पहले हम लोगों ने डिफाइन करा कि कंप्यूटर सिस्टम वो चीज समझ जाए. नाउ वी आर राइटिंग टोटल इज इक्वल टू 0. वी आर राइटिंग टोटल इज इक्वल टू 0 क्यों? कोई बता सकता है प्लीज? Total is a variable and I mean we will keep the value later put there and Yeah, fine. We can say total why I have written there. It will store the final answer. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं काम कर रहा. इट इज स्टोरिंग द फाइनल आंसर जो कि हमारा नीचे से आएगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग लूप थ्रू स्ट्रिंग. स्ट्रिंग सबको समझ में आता है, एंड लूपिंग सिस्टम सबको समझ में आता है कि व्हाट इज लूपिंग सिस्टम. फॉर लूप. ठीक है, वी आर यूजिंग हियर फॉर लूप फॉर आई इन रेंज लेंथ कॉमा एस. अब इसकी जो लेंथ है वो कितने तक जाएगी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, अगर हमारा रेंज लगता है एंड वी आर फाइंड आउट द लेंथ एस, तो हमारी जो रेंज होगी वो कब तक जाएगी? कोई बता सकता है?
यस भैया, वो रेंज जितना मतलब लेंथ जितना हो उसमें +1 कर दीजिए, क्योंकि वो क्या करती है ना जो हाँ inclusive वो होता भी कह सकते हैं, है, बट इसीलिए हम लोग अगर उसको हमें एक किसी लेट सपोज मैंने यहाँ पर को लिखा फॉर आई इन रेंज एन, तो उसका फॉर्मूला होता है ना एक नॉर्मल सा, क्या वो बता सकते हो आप? फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर एन स्टार्ट लिखा होता हमने। है जीरो से, स्टार्ट होता है जीरो हाँ से, फिर आता है आपका स्टॉप, उसके बाद आता है आपका स्टेप। देखो उसका सीधा सा फॉर्मूला अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, कभी भी रेंज लिखा है तो एन टू n-1। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिस्ट दी है 1 to 4, मैंने आपको बोला है कि इसके बीच के नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और मैंने एक कंडीशन डाल दी है। कंडीशन क्या डाली? नंबर शुड बी लेस देन 5। नहीं, कंडीशन भी कुछ नहीं डाली, इजी में समझाता हूँ। अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 करा, ठीक है, अब मेरे को रेंज लगा दी फॉर आई इन रेंज x, फॉर आई इन रेंज x, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा? इसका आउटपुट रहेगा n-n-1, 1 2 3 4, ठीक है, इसका आउटपुट रहेगा 4, क्योंकि फिफ्थ वाला कहा गया n-n-1, एक गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सा आइडेंटिफिकेशन है जो कि आप रेंज में करते हो। फाइन, ये चीज समझ में आई एवरीवन? A thumbs up from everyone if you are getting the things, please. Yeah, sure. नाउ मूविंग विद द सेकंड पार्ट, हमने जो लूपिंग सिस्टम है बट यहाँ पर को कैसे काम कर रहा है। अगर मैं लेता हूँ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0, तो वो हमारी लास्ट की इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि 0 तो हमारा लास्ट में कभी भी फर्स्ट में नहीं आएगा। तो वट वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू टेक वैल्यू आई इज इक्वल टू 0, तो वो होगी लास्ट इंडेक्स। Fine. Now moving with the core logic, what we are going to use core logic from line number 22 to 26. If I plus 1 less than length of s, इसका मतलब कोई बता सकता है? If I plus 1 length of s, If I plus 1 is length of s, I mean जैसे s की जो लेंथ है वो yeah, भैया, जैसे हाँ कि जब लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो उसमें +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है, इफ आई +1 टोटल 1 आएगा, अगर उसका जो लेंथ है वो s से कम है तो ये हाँ कंडीशन ट्रू होगी, फिर एंड को चेक करेगा, उसकी कंडीशन ट्रू होगी, देन ये आगे टोटल इक्वल्स टू जो आपने जो भी दिया वो काम करेगा अपना। 100%, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इजी में मैं बताता हूँ, मैंने आई प्लस 1 लेस देन लेंथ ऑफ एस क्या कर रहा है काम, ये सिंपल सा कर रहा है आपको चेक कि इज देयर एनी नेक्स्ट कैरेक्टर और नॉट, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ एस है, एस क्या दिखा रहा था? एस हमारा दिखा रहा था कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीज, ठीक है, वो बताएगा कि भाई आगे कोई वर्ड है या फिर कैरेक्टर है या नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वो उसको कंपेयर करना है विद नेक्स्ट, ठीक है, दूसरों से कंपेयर करना है। अब मूविंग विद द सेकंड पार्ट, रोमन एस आई लेस देन, ये जो भी मैंने पूरा लिखा है आई प्लस 1, ये क्यों लिखा है? इसका सिंपल सा काम है, ये करता है चेक, ठीक है, करेंट वैल्यू स्मॉलर देन द नेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा, होगी तो वो प्लस करेगा, अपेंड करेगा, काइंड ऑफ स्टफ्स कह सकते हैं, ठीक है। ये कोड किसको समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन, एंड रिटर्न टोटल इज काइंड ऑफ जो कि हमारी रिटर्न वैल्यू आएगी। श्योर? तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग एवरीवन, किसी को कोई भी लाइन समझ नहीं आई तो यू कैन सिंपली आस्क, या फिर कुछ भी समझ नहीं आया, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ यू आर सीरियसली लुकिंग इनटू द थिंग्स, तो मेक श्योर करो कुछ नहीं आता तो यू कैन आस्क, बट लीव नहीं करना मीटिंग। डेली के वी आर गोइंग टू सॉल्व 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है, इन ए लाइव। इफ वाला लूप, ठीक है, इफ वाला लूप हमने क्यों यूज करा, एक सेकंड देखो, जैसे हमने पहले ऊपर से डिफाइन करा है कि भाई जो मेरे रोमन नंबर्स होंगे ये होंगे, उसकी वैल्यू 0 होगी, और मैंने टोटल असाइन कर दिया 0, ठीक है। अब यहाँ पर को लूपिंग सिस्टम का मतलब क्यों आया? क्योंकि द रोमन नंबर्स
जो हमारा रोमन न्यूमरल्स है या फिर नंबर्स हैं वो एक स्ट्रिंग है जो इन्होंने हमें पहले से डिफाइन करा है। एंड वी मस्ट चेक ईच कैरेक्टर वन बाय वन। अगर वो स्ट्रिंग है तो एक एक करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई ये वर्ड क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग ली MCIV, ठीक है, ये मैंने ली। अब आप बोलोगे तो आपने रैंडम ले ली, ठीक है, मैं रैंडम लिया और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इसको क्या करना है। सॉरी, अब मैं अगर आपको सीधे से बोलूं कि ये सीधा सा एक नंबर है या फिर ये टुकड़ों में है, इट इज नॉट ए सिंगल नंबर। ठीक है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे? एम एक अलग वर्ड है, सी एक अलग कैरेक्टर है, एम एक अलग कैरेक्टर है, पूरा ही एक अलग कैरेक्टर है। टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू वी मस्ट हैव टू रीड ईच सिंबल, कंपेयर विथ नेक्स्ट एंड डिसाइड वेदर टू ऐड और सबट्रैक्ट। तब जाके हमने ये लूपिंग सिस्टम यहाँ पर को यूज करा है। ये चीज समझ में आई? भैया मैंने क्लास हाँ। थोड़ी लेट से ज्वाइन की है, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं ये क्लास से लेके ये फोर लूप से पहले के बीच में आपने जो जितना भी आपने काम किया, तो ये क्या क्या हुआ? क्लास क्या है? ये डेफ करके आपने क्या बनाया? फिर आपने ये ओपन में तीन स्ट्रिंग ओपन करके क्लोज कर दिया, उसमें एरर भी नहीं आ रहा। ये चीज बाकी ये, हाँ, ये पूरी चीज ये ऊपर से लेके यहाँ देखो, तक ये जो रोमन लीड कोड वेरिएबल कभी भी आपने आप लिखा। लीड कोड के अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, देखो, हाँ मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीड कोड के अगर आप पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन सॉल्व करते हो डेली, तो एक इनका प्रॉपर सा सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन में इनका ये सिंटैक्स होगा। पाइथन अगर मैं लेता हूँ सी प्लस प्लस में, तो उनका कुछ अलग स्टेप होगा जिसमें क्लास वगैरह सब डिफाइंड रहती है। ठीक है, उसने क्लास दिखा रखी है और क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर वैल्यू है या फिर कुछ भी चीज है, वो उसने पहले से डिफाइन करी हुई है। ठीक है, इफ आई एम मूविंग विद द पाइथन, लाइन नंबर 6 से लेके 1 तक ये पहले से डिफाइंड होगी, उसके आगे का काम आपको करना है। ठीक है, उससे आगे हमने कैसे करा? पहले रोमन नंबर से। कंप्यूटर हमारे रोमन नंबर्स को समझता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1 को। अब उसको तो मेरे को असाइन करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, वी की क्या है, एक्स की क्या है, एल की क्या है। ठीक है, तो मैंने एक रोमन बनाया, रोमन इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये वैल्यू असाइन कर दी, इतनी वैल्यू असाइन कर दी। अब मेरा इसके भैया बीच में कोई भी वर्ड आएगा यार। भैया ये जो रोमन वेरिएबल है, ये इसका डेटा टाइप क्या? और क्या बोला आपने? एक बार दोबारा रिपीट करना, आवाज नहीं है। रोमन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या? ये क्या टपल है, लिस्ट है? लिस्ट तो है ही नहीं, मतलब ये जो करली ब्रैकेट में ओपन और क्लोज किया आपने, ये कौन सा डेटा टाइप है, ये पूछ रहा था मैं। इसको हम लोग कह सकते हैं ये डिक्शनरी, क्योंकि इसमें एक की हाँ वैल्यू हाँ, है सॉरी, और एक पेयर वैल्यू है। डिक्शनरी सर, सही सही। सर ये जो क्लास और ये डेफिनेशन वाले जितने कीवर्ड और आपने जो भी फंक्शन यूज किए हैं, ये कौन से वीक में हमें पढ़ाने को मिलेगा, मतलब पढ़ने को मिलेगा? और ये कौन जैसे सा, कि क्या हमारा अभी क्या करंट बोला में आपने? पाइथन वीक 2 चल रहा है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से वीक में हम लोग लर्न करेंगे? देखो, आपको आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, आपका अगर पाइथन है तो आप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पाइथन के जो इजी क्वेश्चन है ना लीड कोड के, उनको आप करना स्टार्ट करो। एंड सबसे बेस्ट मेथड में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, पढ़ो कंटेंट वाला, आप पढ़ो, ठीक है, बट हम्म। उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि इस वीक में ये आएगा, इस वीक में ये आएगा। ठीक है, लाइक अगर आपको कुछ होता है तो मैं आपको नहीं, रिसोर्सेज या फिर शेयर कर दूंगा। नहीं नहीं, जैसे कि वीक वाइज क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे क्विज वन में भी, जैसे वीक 1 से वीक 4 के बीच में तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वही ना आएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी के एंड ये डेफ वाले जो ये आप हमें पहले दिखा एक रहे हैं, दूसरे वीक में हो जाते हैं, दूसरे या तीसरे वीक में मैक्स टू मैक्स, तीस क्योंकि दूसरे वीक में हाँ, नहीं है, दूसरा वीक पढ़ लिया मैंने। और तीसरे वीक में आएंगे, 100% ले आएगा, तीसरे या फिर चौथे में आएंगे। मेरे को ऐसा मतलब करंट का नहीं पता, क्योंकि अभी फिफ्थ बहुत वीक सारी में चीजें चेंज हुई हैं। क्या? आई थिंक फिफ्थ वीक में हम देख रहे थे, कल थोड़ा पढ़ रहे थे तो। हाँ, तो उसी टाइम पे आता होगा, लेकिन आता है प्लस इसके क्वेश्चंस आते हैं, डिक्शनरी के क्वेश्चन आते हैं और दूसरी चीज के क्वेश्चंस आते हैं। ओके ओके, थैंक यू भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको समझ में आया है। ठीक है,
अब मैं पूछता हूँ, अगर मैंने इसको रन करा तो ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ पर को मैंने कोई भी इंटीजर वैल्यू कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, असाइन नहीं करा है, बट मैंने ये चीजें असाइन करी है, ठीक है। तो अब आप मेरा देख रहे होगे कि इसने मेरा रन टाइम लिया 6 ms। 6 ms, ms का फुल फॉर्म, एक सेकेंड रुकना, हाँ सॉरी, 7 ms हमारा टाइम लिया है, 7 मिली सेकेंड, जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करने में लिया है उसने। अब मैं बताता हूँ इसने इतना छोटा टाइम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर को हमने कोई इंटीजर वैल्यू नहीं दिलवाई थी। ये चीज मेक श्योर करो कि आप अपने पाइथन ओपीपी में भी ध्यान रखोगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर को कोई इंटीजर वैल्यू नहीं दी थी, जिससे कि उसने टाइम, इंटीजर वैल्यू कभी भी हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। और जैसे आप को देख सकते हो, वी आर एट द फर्स्ट 9.14% ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इतना, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि बहुत पहले करते हैं या फिर बहुत छोटा कोड होता है। तो इसका मतलब है कि आपने पूरा डिटेल्ड स्टेप लिखे हैं हाउ टू प्रोसेस ए क्वेरी, बट आपने कोई इंटीजर वैल्यू ये चीज नहीं लिखी है, तो उसको हम मेजरली कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या चीज होती है, सॉरी, ठीक है। अगर मैं आपको इजी सा डेफिनेशन बताऊं, आप इसको भी पढ़ सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि जो इनपुट साइज है n, बढ़ने पर जो एल्गोरिदम हमने यूज करी है वो स्लो होगी या फिर फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ जो जो चीजें लिखी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर को मैं आई इज इक्वल टू INT इनपुट लिख दूंगा, ठीक है, तो वो मेरा इनपुट लेगा। अब वो मेरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है या फिर नहीं है, ये कंपाइलर डिसाइड करता है कि टाइम किसी क्वेश्चंस में होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पूरी इजी डेफिनेशन में जाता हूँ, तो इजी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इनपुट साइज n बढ़ने पर एल्गोरिदम कितना स्लो या फास्ट होगा, इट डज नॉट मेजर द एक्चुअल सेकेंड्स, ठीक है। वो कभी भी आपका 7 मिली सेकेंड या ये चीज किस टाइप से मेजर करता है, वो आपका मेजर करता है इंटीजर वैल्यू, ये चीज टाइम साइज, इनपुट साइज कितना बड़ा था, छोटा था या किस टाइप का था, ठीक है। अब ये मेजर करता है आपका ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है कि आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम या फिर एफिशिएंसी दिखाई थी। एफिशिएंसी मींस कि कितना इजीली आपको उसने आपने उसको एक्सप्लेन प्लस सॉल्व किया था, फाइन। एक बार अगर हम इसमें देखते हैं डीएसए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यही बताता है कि कितना हमने कैसे रन करा था एंड किस टाइप से रन करा था। इसका एक स्टैटिक ग्राफ बनता है जो कि नंबर ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोसेस, वो चीज होती है, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ मूविंग विथ बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन इसी के अंडर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए वी बेसिकली यूज बिग ओ नोटेशन। इन मैथमेटिक्स बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अपर बाउंड ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, सभी आई गेस मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। एक रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज आंसर करो, व्हाट इज ये फंक्शन। Yeah, the main goal is we have to reduce the time to, मतलब टाइम भी नहीं कह सकते हो, बट एफिशिएंसी दिखानी है। लाइक आपका पूरा लॉजिक यूज होना चाहिए, बट आपने इनपुट एंड काइंड ऑफ स्टफ्स नहीं देने चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज को दे यूजुअली चेकआउट करते हैं, ठीक है। फंक्शंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, बिग ओ नोटेशन इज used more specifically to find the worst case time complexity of the algorithm। worst case मतलब घटिया complexity, मतलब कितना हमने उसको इनपुट्स दिए, कितना हमने क्या चीज दी, ठीक है। बिग ओ नोटेशन uses capital O with parenthesis
ओ ब्रैकेट के अंदर, एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस देयर इज ए एक्सप्रेशन, वो इंडिकेट्स द एल्गोरिदम रन टाइम। ठीक है, और रन टाइम कभी भी जो हमारा बिग ओ के अंदर जब कभी भी एन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर को दिखाता हूं मैं, अगर बिग ओ के, जैसे बिग ओ ये है, बिग ओ के अंदर इफ आई एम राइटिंग एन, तो वो मेरा रन टाइम को बताएगा। ठीक है, बिग ओ के अंदर एन, इतनी ही चीजें बताता है। अब जो बिग ओ नोटेशन है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ओ की, ओ के ब्रैकेट के अंदर 1, ओ के ब्रैकेट के अंदर ओ एन, ओ ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर, ओ ब्रैकेट के अंदर एन लॉग एन। ठीक है, शॉर्टिंग पढ़ी है, लाइक शॉर्टिंग कोई एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी चीज को, लाइक सॉरी, शॉर्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपने इसमें देख रहे होगे शॉर्टिंग लिखा है, बबल शॉर्ट, ये इंसर्शन शॉर्ट, अटरम शटरम, जो भी बवाला टाइप लिखा है। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी चीज को असेंडिंग या फिर इफ यू हैव टू अरेंज इन द थिंग्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वी बेसिकली यूज शॉर्टिंग मेथड्स। ठीक है, बबल शॉर्ट्स कम, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट, दीज आर द 4 शॉर्टिंग मेथड्स जो कि हमारी डीएसए में इस्तेमाल होती हैं, वी बेसिकली यूज। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन, ओ वन एंड ओ एन, दीज आर द 2 स्मॉल थिंग्स जो कि बहुत, मतलब ये आप कहीं भी बोल सकते हो कि भाई हाँ ये यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओ की पावर 1 looks up the specific element in array, for example print my array 97, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O1। now moving with the time complexity ON, it finding the lowest value, कभी भी अगर हमें किसी भी चीज की लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो वी विल बी सेइंग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है। अगर स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्स एरे बनाया और उसके अंदर मैंने 60 डाल दिया या फिर कोई नंबर स्पेसिफाई कर दिया, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O1। इज दैट फाइन? ये दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, O1 क्या होता है, ON क्या होता है। प्लीज एक बार सभी थम्स अप इफ यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस एंड काइंड ऑफ स्टफ्स, प्लीज। अश्विनी मौर्य, समझ नहीं आया? देखो, बहुत टाइप के आपके आंसर्स होते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझो कि वो क्या मेजर करता है। लेट्स सपोज मैंने एक जगह पे लिखा कि ए इज इक्वल, आपका पाइथन हो गया है, इस टर्म है। हाँ, तो देखो आपको बहुत जगह लिखनी पड़ रही होगी आई इज इक्वल, आप कभी भी लिखते होगे या फिर आप लॉजिक देखते होगे कि आपका जो प्राइवेट जो पब्लिक टेस्ट केस होते हैं जो आपको दिखते हैं, उसमें यू टेक द वैल्यू 1, एक्स इज इक्वल टू, गिव मी सेकंड, उसमें देखते होगे x इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट, ब्रैकेट में चीजें बंद होती हैं। ठीक है, ये चीज देखते होगे, और यहाँ पर को हमने कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं करी है। एंड ये कभी भी गौर करना, अगर आप ये चीज लिखते हो x इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को छोड़ के, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, एरर्स दिखाता है पब्लिक टेस्ट केस पास होने में। वो बोलता है कि इनपुट नहीं चाहिए। एंड इन IITM BS के जो भी कंपाइलर है वो बोलता है कि मेरे को इनपुट तो चाहिए नहीं, आप लॉजिक लगाओ आंसर पाओ। सेम गोज विथ लीड कोड ऑल्सो, वो बोलता है लॉजिक लगाओ, मेरे को इनपुट नहीं चाहिए। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही मेजर करती है कि भाई आपका जो आंसर था, जो आपने चीज दिखाई, वो कितनी स्पीड में रन करी और वो कितना एफिशिएंट था। लेट अस सपोज, और एक्सप्लेनेशन में ले जाता हूँ, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर को x इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट दिया, y इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट दिया, उसको तो सरदर्द लगेगा ना कि भाई मेरे को पहले x की वैल्यू देखनी, y की वैल्यू देखनी, क्या आएगी, फिर मैं काम करूंगा, काइंड ऑफ। समझे अश्विनी?
ठीक है, तो उसी को, हाँ, तो उसी को कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कभी भी बिग ओ नोटेशन में डिस्क्राइब होती है, जो कि होती है मैथमेटिक्स में कहते हैं अपर बाउंड फंक्शन, या फिर कंप्यूटर साइंस में कहते हैं टू फाइंड द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए एल्गोरिदम, खराब कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखो मैं पहले दो चीज को एक्सप्लेन करूंगा, O1 ON। O1 कब इस्तेमाल होता है? O1 कभी भी, फॉर एग्जांपल आपने एरे या फिर चीजें दिखाते हो, सॉरी, लेट्स सपोज कोई भी एरे है या फिर किसी भी चीज की लेंथ को डिस्क्राइब करते हो, तो वो क्या यूज करता है? O1 को यूज करता है अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, प्रिंट माई एरे 97। ठीक है, ये साइज ऑफ एरे आप कितना ही रखो, एलिमेंट्स कैसे हो, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट उसको स्पेसिफिक नजर आ रहा है एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल माई एरे 97, तो वो O1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेगा। नाउ मूविंग विद द टाइम सेकंड पार्ट, ON। ON is used to find the lowest value. The algorithm must do n operations in array with n values to find the lowest value. क्योंकि जो एल्गोरिदम है, ON वाली एल्गोरिदम है, उसको कंपेयर करना होता है ईच वैल्यू वन टाइम, हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करना होता है, दैट्स व्हाई वी बेसिकली यूज ON। ठीक है, अब समझ में आया सभी को? प्लीज, एंड आई वुड बी रिक्वेस्टिंग सभी से कि प्लीज डोंट लीव द क्लास इफ यू आर सीरियस, और अगर करना है। ए थम्स अप फ्रॉम एवरीवन, आपको समझ में आई O1 ON? प्लीज। अच्छा, now moving with the third part, ON स्क्वायर। अब जो मैंने आपको शॉर्टिंग बताई थी, शॉर्टिंग क्या होती है? किसी भी चीज को अरेंज करना, अल्फाबेट्स को अरेंज करना, नंबर्स को अरेंज करना, या फिर किसी भी चीज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग अरेंज करना, उसको कहते हैं हम शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के होते हैं 4 टाइप्स, एंड दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन, या फिर उस चीज के लिए। इफ यू आर ए डुअल डिग्री स्टूडेंट, तो आपने DSA में पढ़ लिया होगा सेकेंड ईयर। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट। ठीक है, इफ यू आर नॉट, तो यू कैन रीड इट आउट हियर। तो ON स्क्वायर क्या होता है? ON स्क्वायर बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, ये क्या 3 टाइप के शॉट्स होते हैं, वो मैं इजीली एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए ये समझो, कभी भी हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है, स्लो, वो क्या कर रहा होता है, हमारे सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा होता है, या फिर प्रोग्राम को स्लो डाउन कर रहा होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? विद जस्ट एन इंक्रीज in n from 100 to 200 values, the number of operation can increase by as much as 30,000। ठीक है, इसका अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट की प्रोसेस नहीं बताऊंगा। ये 3 टाइप के शॉट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, मूविंग विथ ON log n, इसमें होता है क्विक शॉट। क्विक शॉट कहता है फास्टर ऑन एवरेज ऑफ 3 शॉटिंग एल्गोरिदम। या अभी छोड़ो, इसको भी छोड़ते हैं, दो चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मूविंग टू एवरेज, बेस्ट, एवरेज एंड द वर्स्ट केस। बेस्ट से मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई बता सकता है? बेस्ट मतलब क्या, एवरेज मतलब क्या, एंड द वर्स्ट मतलब क्या? बेस्ट मीन्स कि आपने जो काम है वो कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। एवरेज मीन कि भाई ठीक ही है, नॉर्मल, ये जैसे हमारे आंसर्स आते हैं। ठीक है, वी आर एट द एवरेज पार्ट, ये बेस्ट पार्ट हो गया, ये एवरेज पार्ट हो गया, एंड दीज आर द वर्स्ट पार्ट, जिसमें सॉल्यूशंस में एरर्स भी आते हैं एंड सॉल्यूशंस नहीं हो पाते। बबल शॉट, शॉर्टिंग, एक सेकंड में।
गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक जितना हमने अभी तक आज पढ़ा वो सबको समझ में आया? ऑल 8 गाइस, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग एक बार थम्स अप या फिर थम्स डाउन प्लीज। हाँ, तो सिलेक्शन शॉर्ट क्या बोलते हैं? सिलेक्शन शॉर्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन शॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, इट शॉर्ट्स बाय रिपीटिंग सिलेक्शन बाय द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट को ये लोग क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं बाय डूइंग ए प्रोसेस ऑफ एक एक करके। ठीक है, अब जैसे ओरिजिनल वेक्टर हमें दिया है 64 25 12 22, ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अब अगर हमें इसको शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग विद अ सिंपल स्टेप, एक एक पकड़ के हम लोग कर देंगे 11 12 22 25 64। ठीक है, नाउ मूविंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ शॉर्टिंग टेक्निक। एक बार इसको आप अपने यूट्यूब चैनल में भी, यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। ठीक है, एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ यू आर गोइंग टू मेजर, कभी भी सिलेक्शन शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ओ एन स्क्वायर। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर होता है टू नेस्टेड लूप्स। पहला लूप का होता है जिसके भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ओ एन, और दूसरे का होता है ओ एन। अगर हम ओ एन इंटू ओ एन करेंगे तो ओ एन स्क्वायर आएगा, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एनालिसिस अगर हम करने के बाद आता है ओ एन स्क्वायर। ठीक है, नाउ मूविंग विद, ठीक है, और कह सकते हो कि सिलेक्शन शॉर्ट स्टेबल होता है या फिर नहीं होता। अगर आप इसका डिटेल्ड वर्जन देखोगे, फॉर एग्जांपल 65 20 64 25 12 22 11, करंट का एलिमेंट होता है 64। अब इसकी पूरी प्रोसेस देखना, सिलेक्शन शॉर्ट काम कैसे करता है। 64 को उसने चूज करा करंट एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट है 11। ठीक है, वो क्या करेगा? वो कर देगा स्वैप उन दोनों को। 11 64 को स्वैप कर दिया, 11 64 को 25 12 22 सेम जगह पे है, बस उनको वो कर दिया। नाउ मूविंग विद मैक्सिमम एलिमेंट है 25। 25 को अगर उसने स्वैप करना है तो वो किससे करेगा? 12 से करेगा, क्योंकि वो उसका अगला ही स्टेप उससे छोटा है भाई। तो ऐसे करके 11 12 22 होगा, 11 12 25 22। ठीक है, क्योंकि 25 12 की जगह ले ली थी। नाउ मूविंग विद 25 विल बी स्वैपिंग विद 22। ठीक है, अगर इसको स्वैप करते तो वो एक पूरा ही एल्गोरिदम बन जाता है। एल्गोरिदम कह सकते हैं, या फिर एक पूरा एरे हमारा शॉर्ट हो जाता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ऐसी ही प्रोसेस बड़े बड़े में चलती है। ठीक है, बड़े को लेके छोटे में जाएगा, छोटे को लेके बड़े में जाएगा, एंड करंट एलिमेंट ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टेप टेकिंग प्रोसेस जो कि हमारी स्टेप्स लेती है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना है, बड़े एलिमेंट को पकड़ो और अगले वाले से कंपेयर करो। नाउ मूविंग विद बबल शॉट। बबल शॉट क्या बोलता है? एक सेकंड देना बस। एंड मेक श्योर करो हिट करेगा, क्योंकि इट्स वो है, क्योंकि दो चांस मिलेंगे आपको। देखो, जो बबल शॉट है इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्टिंग टेक्निक जो कि आपकी बहुत इजी होती है, और वो कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, पहला स्टेप है
placing the first large element at its correct position. I1 क्या डिनोट कर रहा है, जो कि पहली है, पहला टेबल है 5 6 1 3। अब आपको जो 6 है उसको ले जाना है लास्ट में, तो आपने 6 को पकड़ा एंड इसको लास्ट में ले गए, और ये आपकी होती है साइकिल्स, I0 I1 I2, ये आपकी होती है साइकिल्स, जो कि तीन साइकिल में आपका 6 का जो एलिमेंट है वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच गया। ऑल्सो यू कैन डू विद द लोअर पोजीशन। लेट सपोज आपने 1 को पकड़ा एंड 6 से कंपेयर करा, ये आगे आया, 5 से कंपेयर करा, फिर आगे आया, तो ये टोटल ऑफ 3 प्रोसेसेस टेक करेगा। ठीक है, 6 अपनी प्लेस में आ गया, अब आया 5 1 3 6, ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप। 5 1 से कंपेयर होगा तो 1 आगे आएगा, 5 3 से कंपेयर होगा तो 3 आगे आएगा, 1 3 5 6, ये हो गया शॉर्ट, इतने में ही हो गया शॉर्ट। नाउ मूविंग विद 1 3 5 6, कंपेयर करना है, अगर वो छोटा बड़ा कुछ भी है तो वी हैव टू कंपेयर इट, वो दिक्कत नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू द थिंग्स। ठीक है, तो हमने कंपेयर करा, कंपेयर करने में हमारी I0 वाली साइकिल में 1 3 5 6 आया, तो दिस इज अ शॉर्टेड एलिमेंट, और बबल शॉट इतना ही बोलता है, नथिंग एल्स। इफ यू आर गोइंग विद द मोर शॉर्टेड प्रोसेस, बड़े एलिमेंट्स को पकड़ा, सबसे कंपेयर करवाया जो उसके आगे चल रहे थे। ठीक है, जो उसके आगे चल रहे थे वाले एलिमेंट्स को कंपेयर कराया, आउटपुट विल बी 5 1 3 6, जो भी हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो अपने पोजीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके पूरा स्टेप करनी है, और बबल शॉट यही बोलता है। एंड इट्स ए काइंड ऑफ स्टेप स्लो प्रोसेस, मतलब स्लो प्रोसेस कैसे, नहीं फास्ट प्रोसेस कह सकते हो, एंड नॉट टेकिंग ज्यादा टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसकी 3 ही प्रोसेस में काम हो गया, इसने ज्यादा प्रोसेस नहीं की। नाउ मूविंग विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O(n²), जो हमने पहले भी पढ़ी हुई थी। ठीक है, बबल शॉट समझ में आया गाइस? नहीं आ रहा तो यू कैन ऑल्सो लेट कि भाई नहीं आ रहा, दोबारा से बताओ, तो आई विल बी ऑल्सो लुकिंग। नाउ मूविंग विद द इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट कैसे काम करता है, वी हैव है 12 11 13 5 6। अब आप बोलोगे तो इसमें तो ई की डिफरेंस है, मैं 13 को पकड़ के हम फर्स्ट में डाल देंगे और वो हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे करके, बट नो, इसमें भी एक की प्रोसेस होता है। लेट सपोज हमने की ली, की पेयर वैल्यूज, की इज इक्वल टू 11 ली, 11 को हमें कंपेयर करना है सबसे। लेट सपोज 12 11, तो 11 इज लेस देन 12, तो 11 को हमने आगे रखा, 11 12 13 5 एंड 6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इंसर्शन शॉर्ट का, जैसे हमारा 11 12 13 5 6 था, ये तो ठीक है। अब जो की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 13, जो कि कंपेयर होगी 5 एंड 6 से। यहाँ पर को भी देख सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, जो हमारी ज्यादा प्रोसेस काइंड ऑफ टेक हो रही है। ठीक है, तो वी विल बी कंपेयरिंग 13/5 एंड 6। नाउ मूविंग विद 13 को हमने 5 से कंपेयर करा, तो 5 हमारा जो है फर्स्ट में आ जाएगा, डायरेक्टली फर्स्ट में। वो 13 से कंपेयर होगा, 12 से कंपेयर होगा, 11 से कंपेयर होगा, वो अपनी प्लेस खुद ब खुद ले लेगा, नथिंग एज ए डीप प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड थर्ड पास। नाउ मूविंग विद द की वैल्यू ऑफ 5, की वैल्यू अगर हमने 5 ली तो वो सबसे कंपेयर होके अपनी जगह पे आ जा रहा है। Now moving with the fourth path, same kind of stuff, 6 सबसे कंपेयर होगा एंड वो अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल बी द फाइनल एरे जो कि हमारी होगी। ठीक है, अगर हम इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस विल आल्सो बी ओ एन, जो कि होगी बेस्ट केस। एवरेज केस विल बी ओ एन स्क्वायर एंड द worst case is o n square. Average and worst case are same, o n square and o n square. फाइन, ये तीन चीज समझ में आई।
आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, अगर किसी को नहीं है तो ये दे कैन थम्स अप, थम्स डाउन प्लीज, एंड ओपन देयर माइक्स। आई गेस बहुत सारे लोग हैं हमारे उसमें। वी हैव श्याम, देविका एंड मैनी मोर, श्रेया, या फाइन। ठीक है, तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि साइड बाय साइड हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउ मूविंग इनटू द लीड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा कल भी था होमवर्क। किस किसने करा? आई गेस किसी ने करा ये 14 क्वेश्चन। Which was longest common prefix? किसी ने करा ये वाला क्वेश्चन? ओह सॉरी। हाँ, longest common prefix, आई एम गिविंग यू अ टाइम। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ो, देन वी आर मूविंग विद द पार्ट्स। ठीक है, तो इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन, तो वो कह रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, वी हैव टू राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंग्स द एरे ऑफ अ स्ट्रिंग। एक एरे दी होगी जिसका नेम स्ट्रिंग होगा, उसके बीच से हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या चीज होती है? जो वर्ड्स के पहले लगता है, जैसे फ्लावर में FL। या 100%, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो हमें वही चीज को फाइंड आउट करना है, एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। और जैसे इसमें फ्लावर्स वाला FLO FL एंड FL, हर जगह FL ही आ रहा है, तो हमें फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी और उसको एज ए रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज सेम हो रही है। ठीक है, पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है कभी भी, इफ यू आर मूविंग विद थिंग्स, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें स्ट्रिंग या फिर किसी भी चीज को एम्प्टी लेना पड़ता है। फाइन, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू, सॉरी, हाँ, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक एक एम्प्टी लिस्ट इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, इफ नॉट str रिटर्न दिस। अगर वो स्ट्रिंग या फिर एम्प्टी होगा तो वो रिटर्न खाली कर देगा। फाइन, मूविंग विद द सेकंड पार्ट, वो क्या चीज कर रहा है, हमें फ्लावर है, तो हम किस प्रोसेस से काम कर सकते हैं, उसको स्प्लिटिंग मेथड। लेट सपोज जितने भी वर्ड्स होंगे वो उसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर हमने स्प्लिट करा, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? या फाइन, हमने जैसे ही स्प्लिटिंग मेथड का यूज करा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि बहुत लंबे लंबे वर्ड्स अगर आ गए तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। फाइन, तो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू एक्सप्लेन ओनली द स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेक इज टेक फर्स्ट वर्ड एज ए रेफरेंस। जो भी फर्स्ट वर्ड होगा उसको वो रेफरेंस में लेगा। जैसे यहाँ पर को FL को F, अभी यहाँ पर को F लिया, या फिर कभी भी वो FL या फिर ये चीज ले लेगा। फाइन, नाउ मूविंग विथ लूप। अब उसने लूप क्यों लगाया? अब उसने लूप इसलिए लगाया फॉर आई इन रेंज लेंथ फर्स्ट, जो फर्स्ट है स्ट्रिंग 0 जो कि हमने रेफरेंस के लिए लिया था। अब वो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा FLOWR को। कैन से F मिलाएगा, L से L मिलाएगा, और उसके आगे अगर मैच कर रहा होगा तो फिर भी वो करेगा, बट वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए वी हैव यूज्ड द हेयर लूप। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस कैरेक्टर फ्रॉम सेम पोजीशन इन अनदर वर्ड्स। जैसे हमने यहाँ फ्लावर FL को देखा, तो वो सेम पोजीशन है या फिर अलग पोजीशन में, वो उसको भी चेक करेगा। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग फॉर वर्ड्स इन स्ट्रिंग, लूप के अंदर लूप।
we are using here. Line number 15 and line number 18, यहाँ पर को what we are going to do, loop के अंदर loop, then we are solving the condition. Now moving with the if condition. अब मैंने यहाँ पर if condition क्यों लगाई है? पहली condition जो if की है वो बताती है index goes out of range. अगर index out of range जाती है और कैरेक्टर मिसमैच होता है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. नहीं सॉरी, अगर इंडेक्स मिसमैच होती है और आउट ऑफ रेंज आती है तो जो भी फर्स्ट वर्ड होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, नथिंग एल्स. रिटर्न्स प्रीफिक्स टिल आई एंड उसके बाद वो लूप कंटिन्यूज, आइदर फर्स्ट स्ट्रिंग इज कॉमन, रिटर्न फर्स्ट. ठीक है, इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है. पहली चीज है एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे जो कि रिटर्न कुछ नहीं कर रही होगी. देन सेकंड बिट, हमें रेफरेंस वैल्यू ले लेनी है कि व्हाट इज द रेफरेंस वैल्यू. वाई वी आर टेकिंग हियर रेफरेंस वैल्यू? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को फाइंड आउट करना है एंड उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कभी भी कैरेक्टर्स को अज्यूम कर लेना पड़ेगा. Not we are giving here values. If I am going to submit this question, ये चीज समझ में आई, ये वाला क्वेश्चन, prefix and the things we are going to use. अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले रहे हो तो आई एम गारंटिंग यू विल बी कंप्लीटली डूइंग योर पाइथन ओपीपी वाले क्वेश्चंस 100% ही. ठीक है, तो देखो इसका हमारा 4ms, बट लोगों ने कितने कितने में करा है? लोगों ने 1 से 2 के बीच में बहुत लोगों ने करा है. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई? या इसकी आई OS. OS मतलब ON, वी कैन से नॉर्मली ON हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई, बट हमने यहाँ पे कोई भी वर्ड्स काइंड ऑफ स्टफ नहीं दिया था. और इसको वी कैन नॉर्मली डू इन मोर इजी वे बाय डूइंग स्प्लिटिंग और काइंड ऑफ स्टफ्स. ठीक है, किस किस को क्वेश्चन समझ में आया? thumbs up and thumbs down please. I would be requesting everyone कि एक बार यहाँ पे साइड में प्रोसेस कर लो. Now I would be requesting if स्नेहा कुमारी can share screen, और अगर वो साइड बाय साइड कर रहे हो तो प्लीज. सब मेरे फोन में नहीं, हम लैपटॉप पे कर रहे और ये कॉल फोन पे. ओके फाइन, नो वरीज नो वरीज नो वरीज. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बताइए. हम कौन सा क्वेश्चन अभी, द थर्ड क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू. कोई भी एक क्वेश्चन बताओ, इजी, मीडियम या फिर हार्ड. हार्ड क्वेश्चंस गोज लाइक वो बहुत बड़े बड़े चले जाते हैं. मीडियम गोज विद द मीडियम लेंथ एंड इजी वाले भी लेंथ उनकी हाई होती है, बट द सीन गोज वेरी नाइस. इफ यू आर गोइंग विद शॉर्टिंग वाले पार्ट, शॉर्टिंग एक सेकंड. Give me a second. Yeah, शॉर्टिंग ऑफ ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस को हमें शॉर्ट करना है. अब मूविंग विद एग्जांपल, अगर हमें एग्जांपल में देखते हैं इज टू सेंटेंस फॉर दिस वन A3, तो हमें क्या करना है? दिस के आगे 1 है तो वो 1 में जाएगा, फर्स्ट प्लेस में जाएगा. इसके आगे जिसके भी आगे अकॉर्डिंगली नंबर्स 1 2 3 4 को ही अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू आंसर इट. ठीक है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, या फिर इफ यू वांट कि हम लोग सीधे डायरेक्शन आंसर में जाए. क्वेश्चन समझ में आया वाला? कुछ नहीं करना है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो ओनली एंड वर्क अकॉर्डिंग टू नंबर जो कि हमें असाइन है. फॉर एग्जांपल 1 असाइन है तो उसको फर्स्ट प्लेस में रखना है.
टू असाइन है तो हमें इसको सेकंड प्लेस में रखना है, एंड थर्ड असाइन है तो वी हैव टू गो विद द थर्ड प्लेस। सबसे पहला इसमें काम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कोई मेरे को बता सकता है वो स्टेप्स हमने पढ़े हैं? ठीक है, तो कोई नहीं बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट है हमें स्प्लिट करना होगा जितने भी सेंटेंस हैं उनको। वर्ड्स इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, फाइन, जो कि क्या है, वो वर्ड्स को स्प्लिट करेगा। एंड दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। कैन से नाउ मूविंग विद स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होगा, क्रिएट रिजल्ट लिस्ट विद द करेक्ट साइज। ठीक है, जो कि अभी हमें एम्प्टी रिजल्ट की जो लिस्ट होगी उसको असाइन करना पड़ेगा, विच विल बी अवर सेकेंड पार्ट। ठीक है, एक एम्प्टी रिजल्ट की लिस्ट है, एंड एल इंटू एल वर्ड्स। वर्ड्स क्यों हमने वो करें, क्योंकि उसके आगे कितने वर्ड्स हैं या फिर जो भी नंबर है उसको डिफाइन करने के लिए वी हैव टू क्रिएट रिजल्ट लिस्ट ऑफ करेक्ट साइज। नाउ मूविंग विद द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अगर आपके माइंड में होगा, वी हैव टू प्लेस ईच वर्ड एट करेक्ट पोजीशन। तो हमें यहाँ पर से लूपिंग चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड वी आर गोइंग टू यूज फॉर लूप फॉर वर्ड्स, नहीं, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, and position is equal to int। why we are writing, sorry, why we are writing int, क्योंकि वहां पर कोई नंबर्स है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना है। अगर नंबर होगा तो इंटीजर है, नहीं तो वो इनपुट वैल्यू हम ले सकते हैं। वर्ड इज -1, एंड व्हाट द थिंग इज गोइंग टू डिसाइड, ये डिसाइड कर रहा है आपका लास्ट कैरेक्टर, जो होंगे वो होंगे नंबर्स। सॉरी फॉर द टाइपोस। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो भी हमारे लास्ट नंबर्स होंगे वो होंगे INT वर्ड्स -1। नाउ मूविंग विद द एक्चुअल वर्ड्स। एक्चुअल वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल वर्ड इज इक्वल टू वर्ड -1। हमने यहाँ पर को भी -1 इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो लास्ट कैरेक्टर है उसको रिमूव करना है अपने आउटपुट में। अकॉर्डिंग टू द आउटपुट एंड द एक्सप्लेनेशन, उसमें उसने 1 2 3 4 को आइडेंटिफाई नहीं करा है, तो वी हैव टू रिमूव द लास्ट स्केर। ठीक है, अब इतना हमने कर दिया, तो हमें एक रिजल्ट चाहिए होगा कि जो भी हमारी पोजीशन है, हमने क्या पोजीशन आइडेंटिफाई करी। ठीक है, यहाँ पर को हमने कुछ भी इनपुट या फिर ये चीज नहीं दी है, मेक श्योर करना, क्योंकि वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पर को क्या करना पड़ेगा, वी विल बी राइटिंग रिजल्ट इज इक्वल टू पोजीशन -1 इक्वल्स टू एक्चुअल वर्ड। ठीक है, ये हमारी रिजल्टिंग लाइन है।
नाउ स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पहले उसको ज्वाइन करवाएंगे एंड उसके बाद रिटर्न द वैल्यूज फॉर लूप को क्लोज करते हुए। डॉट ज्वाइन, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करने जाऊं तो बट द क्वेश्चन सेज हाँ, तो क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड, और हमारा जो, अगर मैं इसको सबमिट करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करूं तो व्हाट इट सेज, ठीक है। प्लस वन मोर थिंग, इफ यू आर डूइंग डेली डीएसए और अ काइंड ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस, तो आपको कॉइन्स मिलते हैं विच यू कैन यूज इन योर किसी भी चीज में। फॉर एग्जांपल बाइंग ऑफ अ सर्टिफिकेट या फिर बाइंग ऑफ अ टी शर्ट, आपको यू कैन गो एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस डेली, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 क्वेश्चंस अभी डेली कर रहे हैं, तो हमारी 3 डेज की स्ट्राइक बन रही होगी कि वी आर रेगुलर इन अवर दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, किसी को नहीं आया कोई भी लाइन। वी हैव नवल, अनुराग, श्रेया, दीपिका, जितेंद्र एंड नंदिनी। किसी को कुछ भी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन तो प्लीज आस्क गाइस। So in this question, we are not actually using the algorithm of sorting. We are not using कभी if we are using नहीं, see for the sorting algorithm what we have to do, firstly we have to split the thing, then we have to increase or decrease the thing, fine. So in this question they have assigned us कि भाई जो numbers है numbers के according we have to do Yeah. sort the words in S and their original position. For example, 1 is written, so we have to go with the 1, 2, 3, 4, and then we have to remove the actual things they are asking, ठीक है। जो numbers है उनको remove करना है, nothing else. So first Okay. step is कि we have to go and split the word. Second is step is कि we have to use the loop and we have to identify the characters जो भी number है. The last character is the number, we have to identify it and उसको arrange करने के बाद we have to remove the character and we have to go with the actual position जो कि number के through assign हुई है, nothing else. Okay. Thank you. If you are going with the medium question, sorting 3 groups. The next question we are going to solve is sorting 3 groups. Give me a second. If you are going with the nums, ठीक है, किसी ने if you are going with the question, you are given an integer array nums. Each element in nums is 1, 2, or 3. In each operation, you can remove an element from num. Return the minimum number of operation to take num non-decreasing. ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया, no worries. If you are going with the example, input nums is equal to 2, 1, 3, 2, 1 and output is 3. क्यों? The explanation goes, one of the optional solution is to remove num0, num2, num3. ठीक है, किसी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चंस? Go with the example and take it. ठीक है, नहीं आया तो you can thumbs down, अगर आया तो it's fine. If you are not doing these kind of stuff, तो मेरे को लगेगा you are getting. So एक इंटीजर array, नॉर्मली इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, एक इंटीजर एरे है जो कि हमें प्रोवाइड करा गया है, इंटीजर 2, 1, 3, 1, 2, 1 एंड वी हैव टू फाइंड द आउटपुट, लाइक जितने एक्स्ट्राज हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर को 1, 3, 2, 1, 3, 3 है, तो वहां पर को एक्स्ट्रा में कितने हैं, 1 एक्स्ट्रा में है, 3 दो बार एक्स्ट्रा में है, तो द आउटपुट गोज 2. One of the optional solution is to remove num and num2. Num1 and num2 को वो remove कर रहा है.
If you are going with the example number 3, everything is 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. And the example goes, num is already non-decreasing. And हमें output में non-decreasing बनाना है. Non-decreasing का if you are going to code, non-decreasing mean num I less than equals to num I plus 1. The formula for non-decreasing is num I num, जो कि हम अभी use करते हैं. I will be explaining you that part. Give me a second. ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्लास दे रखी है एंड डेफिनेशन एंड काइंड ऑफ स्टफ्स दे रखे हैं. सो वी विल बी डूइंग काउंट 1 equals to 0, count 2 equals to 0, count 3 equals to 0. Fine. For then we are going to use for num in nums if num equals to 1. और ये चीजें सारी I will be explaining why we are writing each and everything. And we will be writing count 1 plus equals to 1. ठीक है, सॉरी इसके बीच में स्पेस. Then we will be writing elif num equals to 2. We will be writing count 2 equals to max 1 comma 2 bracket plus 1. Fine. ये चीजें क्यों लिखी? I will be explaining you in this part. Now we will be going for the num is equal to 3. Else count 3 equals to max count 1 comma count 2 comma count 3. एंड उसके आगे हमें लगाना पड़ेगा एक एडिशन add 1 and then we are going to return the value. for के बाद रिटर्न हम लोग अगर करते हैं ठीक है, सेकंड देना. Count is equal to count plus 1 and ex. Sorry. Return length. Return length of nums minus length of NUM. Give me a second. GEST. Virtual narrative. Range. Going to length nums minus GEST. With this part.
indentation error, sorry. Yeah, if I'm going to explain you these parts कि वो बोल क्या रहा है. In the first line, count 1 is equal to 0, count 2 is equal to 0 and count 3 is equal to 0. Count 1 का मतलब होता है longest सब sequence ending in 1. ठीक है, इसका मतलब है longest subsequence ending in 1. एंड काउंट 2 का मतलब है longest subsequence ending in 2 एंड काउंट 3 का मतलब है longest subsequence ending with 3, क्योंकि इसमें we have only 1 2 3 as per the defined thing. Now we are going with the loop through array. For num in nums we will process number one by one. एक एक करके जितने numbers होंगे उनको numbers को split करके, you can also go with the split method here. ठीक है, नहीं तो आप ऐसे मेथड से भी कर सकते हो by the process of one by one while writing for num in nums. अगर now moving with if nums equals to 1, वो बोल रहा है if number is 1, a 1 can only exceed in a sequence of 1. एक की ही सीक्वेंस में वो जा सकता है, it can't extend 2 और 3. वो एक ही बार आएगा, वो 2 और 3 को एक्सटेंड नहीं करेगा या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा. सो अगर वो चीज है तो हाँ, नहीं है तो इट विल गो इन elif and check for num is equal to 2. फाइन, तो हमने यहाँ पर को लिखा मैक्स काउंट 1 कॉमा काउंट 2 प्लस 1. व्हाट डज दिस थिंग मीन्स? Why we have written here max count 1 and count 2? Because 2 can extend in a sequence of 1 or a sequence of 2, but वो 3 के में नहीं जाएगा. 1 can go with itself और वो किसी के साथ नहीं जाएगा. 2 can go with 1 and 2 and 3 can go with 1 2 3. Then it will return the longest is equal to max count 1 2 3. then वो return करेगा value. Nothing else we have done here. ठीक है, ये चीज समझ में आई? कोई पार्ट यू आर नॉट गेटिंग? थम्स अप या फिर थम्स डाउन प्लीज इफ यू आर गेटिंग. ठीक है, कुछ नहीं है, इफ एल्स का लूप लगाना है एंड वी हैव टू डू द थिंग्स. ठीक है, फॉर टुडे वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस जो कि है नाउ. ठीक है, नो होमवर्क फॉर टुमारो. वी विल बी मूविंग फ्रॉम फॉर टुमारो वी विल बी मूविंग ऑल जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उस चीज को डिस्कस करेंगे एंड वी विल बी मूविंग 5 क्वेश्चंस टुमारो. ठीक है, 5 क्वेश्चंस आज जितना एक्सप्लेन करा उतना नहीं करके वी विल बी मूविंग ऑन क्वेश्चंस. सो मेक श्योर प्लीज ज्वाइन द सेशंस. Sure. So for that, for today, we can conclude the sessions here. We have completed the 4 questions. If you are liking the sessions, so make sure to join from tomorrow also. We have 3 days remaining. Sure. Thumbs up and thumbs down if you are getting or not. We have 7 members, guys. Yeah, Sunny sir, I would be requesting you can stop the recording and we can proceed.